لیکن گور صاحب نے تو کل کہہ دیا تھا کہ آزاد ہونے لگے 5 تاریخ کو. آپ گور صاحب سے ذرا اپنے سوال پوچھیں کہ کیوں کہنے کہہ رہے ہوں گے نہیں رہا کرے گا تو میں نے کہا امید ہے کیس لگے رہائی کرے گی. ہاں اپنے انہوں نے لوگ میں سے پوچھنے کہ گور صاحب نے کہا گور صاحب سے پوچھا کہ ان کو کوئی خوشخبری ہے تو ہمیں بھی بتا دیں. یہ بتائیں میڈم ایک سوال لے اغلباً سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا دفتر چیف جسٹس صاحب کے جو ہے احکامات کے تابع ہے بھی یا وہ اپنی منمانی کرتا ہے اور کسی اور کے احکامات پر چلتا ہے. بہرکیف ہم نے پھر ساری پارٹی نے آ کر اسی طرح احتجاج کیا کہ جناب آپ نے تاریخ دی تھی اور تاریخ پر کیوں دفتر نے نہیں لگایا. اس پر انہوں نے جو ہے پھر ہمیں تاریخ دی جس پر جو ہے پھر تاریخ لگی اور نوٹس ہوا. ہماری جو ہے جو پٹیشن تھی اس کو موشن میں لگا کر معطلی سزا کی جو ہے انہوں نے درخواست دی اور درخواست ہماری کو منظور کرتے ہوئے سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے انہوں نے فریق دوسرے کو نوٹس دیا. اور نوٹس کے بعد آج کی ہمیں تاریخ دی ہوئی تھی جب ہم ہفتے پچھلے یعنی بدھ کو آ کر سارے پیش ہوئے تو آج کی تاریخ تھی. لیکن پھر دفتر نے اس پر کوئی جو ہے عملداری نہ کی اور چنانچہ آج ہم پھر اکٹھے ہوئے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر. اور پھر ہم نے اندر جا کر چیف جسٹس صاحب سے بھی استدعا کی جس میں خود چیف علیمہ بی بی ان کی ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اور ہمارے جو ہے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے یہ موجود تھے. علی ظفر صاحب موجود تھے. ہمارے چیئرمین بیرسٹر جو ہے گوہر صاحب موجود تھے اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے جو ہے نیازی صاحب موجود تھے. ہم نے جو ہے ان سے استدعا کی. علی ظفر میں نے نام لیا ہے سینیٹر علی ظفر صاحب موجود تھے کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی تو ہم نے ان کو استدعا کی کہ جناب یہ تو پھر تاریخ نہیں لگائی ہے. تو آج الحمدللہ ہم تاریخ لے کر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 5 تاریخ کو ہر صورت میں اس کی جو ہے عید سے پہلے سنوائی ہوگی سماعت ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ اسے یکسو کیا جائے. اور ہمیں کبھی امید ہے لسٹ میں بھی ڈال دیا ہے آج حکم جاری کر کے لسٹ میں ڈال دیا ہے. تو ہمیں کبھی امید ہے کیونکہ انشاءاللہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے یا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے یہ اتنا زیادہ جو ہے ناقابل پذیرائی کیس ہے کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ میں سے کوئی ایک ڈھیلا جو ہے وہ نہ تو عمران خان کے کٹی میں آیا نہ ہی بشرا بی بی کے پاس گیا بلکہ سیدھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا اور ادھر سے پھر سیدھا جو ہے سپریم کورٹ نے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں یعنی سرکاری خزانے میں بھیج دیا اماؤنٹ. تو پھر اس لیے جب کوئی بھی خرد برد کا عنصر نہ ہو تو مقدمہ جو ہے نیب کا یا کرپشن کا نہیں بنتا. اسی طرح جو القادر ٹرسٹ کا جو یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو سہاوا میں 460 کنال جو ہے وہ رقبہ ملک ریاض نے خرید کے چونکہ وہ ایک اس کاموں میں بہت زیادہ وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس نے جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے زمین خریدی اس پر یونیورسٹی بنی. اس پر یونیورسٹی جو ہے وہ آج بھی چل رہی ہے اور وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور جو کہ پریسٹیجیس پاکستان کی سب سے زیادہ پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے وہ اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے منسلک ہے یعنی اس کی ڈگری گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی دے گی تو اس سے جو ہے ان کو تعلیم بچوں کو مفت میسر آ رہی ہے. اور عمران خان صاحب چونکہ ٹرسٹی کے طور پر یا بشرا بی بی ٹرسٹی ہے انہوں نے ایک ڈھیلے کا اس میں سے نہ مفاد اٹھایا ہے نہ ہی کوئی اپنا عزیز و اقارب یا کسی پارٹی مین کو وہاں ملازم رکھا ہے. تو اس لیے جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ہے وہ موجود ہے آلریڈی اور انہوں نے الٹا اسے جو ہے ضبط کر کے اس کا تباہی پھیر دی ہے اور بچے جو ہیں وہ قسم کرسی کے عالم میں ہیں. ان کی فیسیں اور ان کے اخراجات سے بھی وہ اس کو یونیورسٹی کو محروم کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ جس دن انشاءاللہ لگے گا کیس یہ اسی طرح ہوا میں پھینک دیا جائے گا
जिस तरह जो है आपने देखा कि साइफर केस को उठा के फेंका हाई कोर्ट ने, और जिस तरह से इद्दत केस को सेशन कोर्ट ने अपील में उठाकर फेंका, इसकी भी हैसियत वही है कि इंशाअल्लाह ये कागज के चंद रद्दी के पुर्जे हैं, सफ़े हैं, जिनको इंशाअल्लाह जो है अदालत आलिया, हमें उम्मीद है कोई भी अदालत इंसाफ करने लायक होगी तो वो इंशाअल्लाह इसको फेंकेगी। और मैं ऐड कर दूं कि अदालत, ये बड़ी क्लियर बात है कि अदालतें इस वक्त आजाद रही हैं, बार बार अपने जज साहिबान को एक पैगाम भिजवा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कौम आपके साथ है। आपने खुद कहा कि आपको प्रेशर आता है, आपने एक लेटर लिखा जिसमें आपने कहा कि हमारे पर प्रेशर होता है, हम आपका साथ देंगे, कौम आपके साथ खड़ी है, आप फैसला हक में फैसला करें। आपसे कौम को उम्मीद है, इस मकसद पे आपको अल्लाह ताला ने बिठाया इसीलिए कि आप इंसाफ करेंगे। तो हमारा जो 26वीं तरमीम है, ये जो एक डाका मारा गया अदली के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, और जिन पार्टियों ने वोट दिया है न वो जमहूरी है और न वो लायक है कि लोग उनकी शक्लें भी देखें इसके बाद। तो ये डाका मारा गया है अदला की आज़ादी के ऊपर, ये 26वीं तरमीम के, इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे, और ऐसी तरमीम को हम की टोकरी में फेंकेंगे इंशाअल्लाह। अवाम ने पहले ही मैंडेट दिया इमरान खान को, इन्होंने चोरी किया, इन बेशर्मों ने चोरी किया, चोरी करवाया गया, इदारों ने मिलकर चोरी करवाया, भीड़ बन के बैठे हुए हैं, मजीद तरमीमें कर रहे हैं, मुल्क के कानून को इन्होंने लोडी बनाया हुआ है। तो हम फिर अब यह कहते हैं कि कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप कोई प्रेशर ना दें, आप इंसाफ पे फैसले दें। इमरान खान साहब के सारे झूठे मुकदमे हैं, ये जो केस अभी आपके सामने बयान किया गया है उसमें बेनिफिशरी ही नहीं है ना इमरान खान साहब न मुशर्रफ भी, और केस नहीं लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ईद से पहले 5 तारीख की इंशाल्लाह पेशी मिली है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह जब बहस होगी, फैसला इंशाल्लाह आएगा, तो पूरी कौम को पता चलेगा कि किस तरह डगोसले मार के अपने आप को नंगा करके ये निजाम, जो निजाम चला रहे हैं, वो किस तरीके से मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हम ये करके ये सब कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे इंशाल्लाह। और वजह क्या है उसकी पूरी कौम सुन ले। वजह ये है कि इमरान खान हमारी कौम की और हमारे बच्चों की जान लड़ रहा है। अभी 5 को लिस्ट के ऊपर उन्होंने डाल दी है कि हमने आ चुकी है और लग चुकी है और अब मिल चुकी है। वो ऐसे हम लोग टाइम लगा, ऐसे लगा है कि हमने इंश्योर किया है कि हम डलवा के आए। 5 को नहीं सुनते, इसके बाद आप क्या लाए? बात यह है कि उसके बाद का जो लाएमल है वो भी आपके सामने आएगा, और इंशाल्लाह अब जो इस तरह लिस्ट के अंदर आ गया है, अब हम यहाँ वक्त से पहले बारिश नहीं करते। अदलिया को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इंसाफ करो, जल्द फैसले करो। अब पहले से गलत वक्त कोई बात करना मेरे ख्याल में अदलिया के बारे में ठीक नहीं है, कि पहले से क्या मुनासिब नहीं है। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने बड़ा मुख्तसर सा रिक्वेस्ट किया। हमने बड़ा मुख्तसर जिक्र किया चीफ जस्टिस साहब से। एक केस हुआ है जिसमें कन्विक्शन हुई है, और ये जनवरी 17 की कन्विक्शन है जिसमें केस फाइल हुआ था, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। लास्ट टाइम हमारी इसके बाद मीटिंग हुई, कमिटमेंट ये हुई कि इस हफ्ते लगेगा, इस हफ्ते दोबारा नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अदालतों का काम है, अदालत ने हलफ उठाया होता है कि न सिर्फ ये कि मैं इंसाफ करूंगा, वो इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी फेवर के वो इंसाफ हो। हमें ये उम्मीद है, खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है, आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे हैं। नवाज शरीफ के पहले केस में 70 दिन के बाद उनको बेल मिली, दूसरे केस में सजा हो गई है, 10 साल की सजा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद उनको बेल मिली है। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में है, एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। हमने आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है, लिस्ट इशू हो जाएगी, सैटरडे को कंप्यूटर में डला गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला
कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा, और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है। आपा जरा ऊंचा बोलिएगा। पीछे से लोग धक्के मारे चलो अच्छा छोड़ो उनकी आवाज भी नहीं वो आए थे नेशनल असेंबली के पार्लियामेंटेरियंस आए और इन लोगों ने साथ दिया हमारी फैमिली का। और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि जो जजेस को मुश्किलात हैं फैसले देने में, सिर्फ इमरान खान के लिए ये मुश्किलात हो रही हैं, और हम जज साहब जो जस्टिस हैं इनकी मजबूरी समझ रहे हैं। कि मेरा नहीं ख्याल कि ये चीफ जस्टिस साहब जो बेचारे वादा कर रहे थे कि वो चाहेंगे कि जो जबान दे रहे हैं हमारे सीनियर मोस्ट लॉयर्स को कि वो अपनी बात से पीछे हटें। और ये बारी बारी जो हो रहा है, क्योंकि कहते हैं मैंने कॉजनेस में दिया था कि आप पीछे से मुझे लगता है कि ऑर्डर करते हैं और इनको टेस्ट में डलवाने नहीं देता। तो मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ, पीछे बैठे हुए हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, चाहे ये ताड़न और भूल के हाथ हैं जिन्होंने ये 26वीं तरमीम बनाई, या कोई और हाथ है, देखें पीछे से काम ना करें। आए हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आगे बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। मुझे सिर्फ ये बता दें हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है, हमारे भाई ने आपको कहा क्या है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं। वो तो इस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। आप सारा दिन जो मसरूफ रह रहे हैं उसके पीछे लगे हुए, वो कह चुके हैं कल हमें, ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज आदमी है, वो सूफी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, आप उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहा है, उसका अल-कादिर की जो आज सजा आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस्म के लोग हैं, यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फिरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीजें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर खत्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियां आती है कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को तो खत्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम बेस के ऊपर हमारे साथ बैठे, हम तैयार हैं, हम सामने बैठेंगे। हम पीछे छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 5 तारीख को इन लोगों की मेहनत है। चीफ मिनिस्टर साहब अंदर गए, हमारे यहाँ कोसा साहब थे, अली जफर साहब थे, गौर साहब थे, लेकिन गौर साहब ने तो कल कह दिया था कि आजाद होने लगे 5 तारीख को। आप गौर साहब से जरा अपने सवाल पूछे कि क्यों कहने कह रहे होंगे नहीं रिहा का निकाला, मैंने कहा उम्मीद है केस लगे रिहाई करेंगे। हाँ अपने उन्होंने लोग मेरे से पूछ रहे थे, गौर साहब ने कहा, गौर साहब से पूछा कि इनको कोई खुशखबरी है तो हमें भी बता दें। ये बताएं मैडम, एक सवाल